السلام علیکم سامعین، وائس آف کشمیر مظفرآباد FM 105.4 کے اسٹوڈیو سے میں ہوں آپ کے ساتھ محسن سیاب۔ سامعین، آپ کو بتاتے چلیں کہ وائس آف کشمیر ریڈیو نیٹ ورک نے کرونا اپڈیٹس کے حوالے سے خصوصی طور پر وہ قائم کیا ہے، اور اسی سلسلے کی ایک کڑی آج کا ہمارا یہ پروگرام بھی ہے، اور یہ پروگرام روزانہ کی بنیاد پر ہم 5 سے 6 بجے آپ کے لیے لے کر حاضر ہوتے ہیں۔ ہمیشہ کی طرح آج میں آپ کے ساتھ محسن سیاب ہوں، اور میرے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں امیر الدین مغل، جو کہ کل کے پروگرام میں بھی ہمارے ساتھ تھے۔ سامعین، اس کے علاوہ آپ کو بتاتے چلیں کہ آج کے پروگرام میں ہمارے ساتھ وزیر صحت ڈاکٹر نجیب نقی صاحب ہوں گے، اور اس کے علاوہ SSP مظفرآباد یاسین بیگ صاحب، اور ہاٹیاں بالا سے ہمارے نمائندے عدنان فاطمی ہمارا ساتھ دیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ مظفرآباد سے اورنگزیب چرال اور راولہ کوٹ سے ہمارے نمائندے ساجد محمود ہمارے ساتھ فون کال پر موجود ہوں گے۔ ان تمام لوگوں سے ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ آج کرونا کے حوالے سے پورے آزاد کشمیر کے اندر کیا کیا نئے فیصلے کیے گئے ہیں، اور ابھی ہر سٹی میں کیا صورتحال ہے۔ سامعین، کرونا کے حوالے سے آپ کو اپڈیٹ کرتے چلیں۔ اس وقت پورے پاکستان میں 1039 کیس ہو چکے ہیں کرونا کے، اور مجموعی طور پر اب تک 7 افراد جو ہیں وہ جاں بحق ہو گئے، اور جبکہ نئے کیسز آنے کے سامنے ملک بھر میں مجموعی کیسز کی تعداد 1039 ہو چکی ہے، اور ملک میں کرونا وائرس سے اب تک خیبر پختونخوا میں 3، بلوچستان، گلگت بلتستان، سندھ اور پنجاب میں ایک ایک ہلاکت ہو گئی ہے۔ ملک وائرس سے اب تک 20 افراد صحت یاب ہو چکے ہیں، جن میں سے 14 کا تعلق سندھ، 4 کا گلگت بلتستان اور 2 کا تعلق اسلام آباد سے ہے۔ ملک میں آج کرونا وائرس کے مزید 49 کیسز سامنے آئے ہیں، جو سندھ، بلوچستان، خیبر پختونخوا، گلگت بلتستان اور اسلام آباد سے رپورٹ ہوئے ہیں۔ لیول زیادہ پھٹ رہی ہے بات۔ اچھا، کو بتاتے چلیں کہ آج خیبر پختونخوا میں کرونا وائرس کے سامنے آ چکے ہیں، جن کی تصدیق صوبائی وزیر صحت تحمید سلیم جھگڑا نے ایک ٹویٹ کے ذریعے کی۔ انہوں نے بتایا کہ مردان کی یونین کونسل منگا میں 46 افراد کے ٹیسٹ کیے گئے، جن میں سے 39 افراد میں کرونا وائرس کی تصدیق ہوئی، جبکہ 4 افراد کے ٹیسٹ منفی آئے ہیں۔ وزیر صحت نے مزید بتایا کہ پاکستان میں کرونا وائرس سے انتقال کرنے والے پہلے مریض کا تعلق یونین کونسل منگا سے تھا۔ سامعین، یہ تھی اب تک کی کرونا کے حوالے سے تازہ ترین اپڈیٹس، اور اس کے ساتھ ہی ہم اپنے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے دین مغل صاحب سنائیے، کیا حال چال ہے آپ کے؟ زبردستی، اللہ کرم ہے، ہم ٹھیک ٹھاک ہیں۔ بس وہی صورت حال ہے جو کل تھی، آج بھی، تو بس اسی والے سے ہم بھی جو ہے فکر مند ہیں کہ یہ جو وبا ہے یہ مزید نہ پھیلے، تاکہ کچھ لوگوں کو جو ہے وہ مشکلات کا سامنا ہو۔ اچھا، یہ بتائیں، پورے دن آج آپ فیلڈ میں رہے، کیا تازہ ترین ہیپننگز ہیں اس کرونا کے حوالے سے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ آج صبح جب میں اٹھا تو اس وقت ہلکی ہلکی بارش بھی شہر میں ہو رہی تھی، تو باہر نکلا تو آج دیکھا کہ آج جو لاک ڈاؤن تھا وہ کافی زیادہ جو ہے وہ اثر والا تھا، کیونکہ گزشتہ روز تو لاک ڈاؤن جو گاڑیاں وہ زیادہ چل رہی تھی، لوگ بھی نظر آ رہے تھے، لیکن آج کافی کم تعداد میں گاڑیاں تھیں، لوگ، پولیس بھی جگہ جگہ لوگوں کو پوچھ گچھ کر رہی تھی، جو بھی کوئی موٹر سائیکل گاڑی پہ آ رہا تھا۔ تو اس حوالے سے آج کا لاک ڈاؤن جو ہے وہ اس پہ عمل درآمد گزشتہ روز کی نسبت۔ اچھا، مطلب عوام تعاون کر رہے ہیں آپ کے، جیسا کہ گورنمنٹ نے اناؤنس کیا تھا کہ آپ اپنے گھروں کے اندر رہیں اور بغیر کسی ضرورت کے گھر سے باہر نہ نکلیں۔ بالکل، لوگ تعاون کر رہے ہیں، لیکن میں کہتا ہوں کہ لوگوں کو مزید تعاون کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک جو بہت اہم مسئلہ ہمارا آ رہا ہے وہ یہ کہ پنجاب سے مختلف شہروں سے جو لوگ آ رہے ہیں آزاد کشمیر کے مختلف علاقوں کے لیے، اپنے آبائی علاقوں کو جانے کے لیے، جو وہاں فیکٹریوں میں کام کرتے تھے یا اسٹوڈنٹ تھے، تو ان کا ایک بڑا مسئلہ ہے کہ وہ آج کوالا کے مقام پر، جو کوالا پل سے پار KPK کا علاقہ ہے، وہاں پر کافی تعداد میں لوگ جمع تھے۔ تو آخری اطلاعات تک ہمیں یہ معلوم ہوا ہے کہ وہ لوگ وہاں سے چلے گئے ہیں، اب
اس کی تفصیلات کیا ہیں کہ وہ آزاد کشمیر کی طرف آ گئے ہیں، ان کو جانے دیا گیا ہے، یہ معلوم کرنا ابھی باقی ہے۔ اس سلسلے میں ہم یاسین بیگ صاحب سے بات کرنے کی کوشش کریں گے، کیونکہ گزشتہ رات گورنمنٹ کی قسم کا نوٹس جاری کیا گیا تھا کہ کوئی بھی اپنا آزاد کشمیر سے باہر جائے گا اور نہ باہر کا کوئی بندہ آزاد کشمیر کے۔ میرے خیال میں یہ ایک مطلب اچھا ایک ڈیسیجن تھا کہ کیونکہ لوگ آ بھی رہے تھے جا بھی رہے تھے، کیونکہ پاکستان میں دن بدن کیسز بڑھ رہے ہیں اور اس کی وجہ سے ڈیفینیٹلی آزاد کشمیر جو افیکٹ ہونا تھا۔ بالکل، بات یہ ہے نا کہ لوگ جو آ رہے ہیں وہ بھی مجبوری کے عالم میں آ رہے ہیں، کیونکہ جو فیکٹریوں والے تھے یا جو ہاسٹل تھے وہ بند کیے گئے اچانک، اور پھر لوگوں کو آنا پڑا۔ لوگوں کہنا ہے کہ ان کو وہاں رہائش کے لیے جگہ نہیں تھی، خوراک کے لیے ان کے پاس کوئی چیز نہیں تھی، تو اس لیے وہ آ رہے ہیں۔ تو میرے خیال میں وہ جو لوگ ہیں اب ان کو گورنمنٹ پنجاب کے ساتھ بات کر کے ان کو روک دیا جانا چاہیے کہ وہ زیادہ لوگ ادھر موومنٹ نہ کریں، کیونکہ محفوظ ہے اس وقت، اور خدا نخواستہ اگر چند بھی ایسے لوگ آ گئے جو کہ اس وائرس کا شکار ہوں گے تو اس سے وائرس بہت زیادہ پھیل سکتا ہے اور اس سے کافی زیادہ نقصان ہونے کا خطرہ ہے۔ ڈیفینیٹلی گورنمنٹ پنجاب کی کہ وہ لوگوں کو روکیں اس طرح۔ بالکل یہ بات آپ کی بالکل صحیح ہے کہ رسپانس کو آپس میں کوارڈینیشن قائم کرنے حوالے سے کہ ایک دوسرے کے ساتھ مل کے بات کر سکیں۔ فاطمی صاحب ہولڈ پہ رہیے گا۔ اچھا، امیر الدین گل صاحب اس وقت ہمارے نمائندے عدنان فاطمی ہٹیاں والا سے ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں، ان سے ہم بات کریں گے، ان سے کوشش کریں گے جاننے کی کہ ہٹیاں والا میں کیا صورت حال ہے۔ السلام علیکم عدنان، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ عدنان یہ بتائیے گا کہ ہٹیاں والا کے حوالے سے ہمیں تفصیلات دیجیے گا کہ وہاں پہ کس طرح کے انتظامات کیے گئے کرونا وائرس سے بچ۔ جی بالکل، کرونا وائرس کے ممکنہ پھیلاؤ کے خطرے کے پیش نظر جو آزاد کشمیر بھر میں لاک ڈاؤن کا فیصلہ کیا گیا ہے، اس میں جہلم ویلی میں 100% اس پر امپلیمنٹ ہوا ہے۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ عوام جو ہے وہ گھروں میں ہیں، لوگ باہر نہیں نکل رہے ہیں، ایک دوسرے کے جو سوشل کنٹیکٹس ہے وہ بالکل ہو گئے، اور جنازے اور دیگر جو تقریبات ہیں ان میں بھی شرکت سے اوائڈ کر رہے ہیں۔ اشیاء پردنوش کے علاوہ تمام مارکیٹس وہ طور پر بند ہے، پبلک پرائیویٹ ٹرانسپورٹ بھی۔ اچھا یہ بتائیں کہ انٹری پوائنٹس پر چیکنگ کی کیا صورتحال ہے؟ جی بالکل، ہٹیا بالا کا واحد انٹری پوائنٹ چکیاں جو چیک پوسٹ ہے وہاں پر قائم کیا گیا، اس پر پولیس اور آرمی کے علاوہ جو محکمہ صحت کے اہلکاران موجود ہیں۔ آج رات کے بعد کسی شخص کو جہلم ویلی میں انٹری کی اجازت نہیں ہے، سوائے وہ سرکاری موومنٹ جو لوگ کرتے ہیں یا مریض جو ہٹیا بالا سے مظفر آباد کی طرف سے ریفر کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ تمام لوگوں کو انٹری کی اجازت ہے، جو لوگ آ بھی رہے ہیں اس کی بھی اسکریننگ کی جا رہی ہے وہاں پر، اور جو ایسے مشکوک لوگ ہیں ان کو قرنطینہ سینٹر چکار میں منتقل کیا جا رہا ہے۔ اچھا یہ بتائیں عدنان، قرنطینہ سینٹر چکار میں قائم کیا گیا۔ دوسرا مجھے یہ بتائیے گا کہ ہٹیاں والا ڈسٹرکٹ کا ایک واحد ہاسپٹل ہے، وہاں پہ ارینجمنٹس کیسے ہیں؟ قرنطینہ سینٹر جو جہلم ویلی کا ہے وہ چکار میں بنایا گیا الگ رکھنے کے لیے، اور اس کے علاوہ باقی لیپا کے لیے لیپا میں ایک الگ بنایا گیا کیونکہ وہاں پر ٹرانسپورٹ کا نظام نہ ہونے کی وجہ سے وہاں پہ کیا گیا ہے۔ جو ڈی پی جہلم ویلی ہے اس میں تقریباً 30 جو کورونا کے مریض ہیں ان کو رکھنے کے لیے الگ الگ وارڈ تشکیل دیے گئے، 30 جو الگ کٹس ہیں وہ موجود ہیں، دیگر ساز و سامان موجود ہے۔ رسپانس ٹیم بنائی گئی ہے اسپتال کا ایم ایس ایف خواجہ حضرت بشیر کی جانب میں 20 مریض جو ہیں وہاں پر آ سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے کرائٹیریا یہ ہے کہ 20 مریض وہی آئیں گے جو کنفرم ہوں گے۔ مشکوک مریض کو قرنطینہ سینٹر میں بھیجا جاتا ہے، وہاں پر سیمپل لینے کے بعد اس کا ٹیسٹ ہونے کے بعد نیگیٹو آنے کی صورت میں اس کو ڈی ایچ کیو میں شفٹ کیا جاتا ہے۔ اچھا عدنان یہ بھی بتائیے گا کہ ابھی قرنطینہ سینٹر کی کیا شعبہ کی بنیاد پہ؟ جی بالکل، وہاں پر تقریباً جو ہے جن کی ٹریولنگ ہسٹری ہے جو ایران، چائنا، سعودی عرب، اور ان کو وہاں پر رکھا گیا، اور 2 مریض جو تھے وہ ڈی ایچ کیو ہٹیا بالا سے وہاں پر ریفر کیے گئے، جن میں جو ہے وہ کورونا کا ٹیسٹ تو مثبت نیگیٹو نہیں ہے، لیکن اس کے بقول ان کو وہاں پر رکھا گیا کہ تاکہ ان کی مزید کیئر کی جائے کہ ان کے علامات رہ گئے۔ تھینک یو سو مچ عدنان۔ سامعین یہ تھے ہمارے ساتھ عدنان فاطمی ہٹیاں بالا سے، جنہوں نے ہمیں ہٹیاں بالا کے حوالے سے بتایا کہ وہاں پہ گورنمنٹ کی جانب سے کیا کیے گئے ہیں اور قرنطینہ سینٹر کی صورتحال کیا ہے۔ والا کے حوالے سے میں روز خبریں پڑھتا رہتا ہوں، کافی اچھی انتظامیہ نے وہاں پہ انتظامات کیے ہیں، وہاں کے جو ڈپٹی کمشنر ہیں، ڈی سی ہیں یا محکمہ صحت کا عملہ ہے۔ اصل میں ہٹیاں والا جو ہے اس کو مینیج کرنا بہت آسان ہے، ایک تو یہ ہے کہ چھوٹا ضلع ہے،
बहुत ज़्यादा फैलाव नहीं है। जिस तरह अगर नीलम वैली की बात करें तो 6,000 कश्मीर की डिस्ट्रिक्ट जितना उसका रकबा है, तो फिर एंट्री पॉइंट भी मेन जो है वो एक ही है, तो इसलिए उसको मैनेज करना आसान है और काफ़ी बेहतर तरीके से मैनेज कर रहे हैं उसको। यही हमारी भी इतलात है कि वहाँ पे कुछ इस तरह की शिकायत जो है नहीं आई कि जिस तरह की दीगर अजला में आ रही है। हाँ, क्योंकि हटियां बाला गई कि जहाँ पे उन्होंने स्क्रीनिंग का सिस्टम भी रखा हुआ और वहाँ पे एक पुलिस चौकी भी है और जो कि प्रॉपर पूछताछ के बाद गए थे। समीन, आप सुन रहे हैं वीओ के इंफॉर्मेशन डेस्क और मैं हूँ आपके साथ मोहसिन सियाद और मेरे साथ मौजूद हैं अमीरुद्दीन मुगल इस वक्त प्रोग्राम में, और इसके साथ साथ मुजफ्फराबाद के अलावा बाग और रावलाकोट FM 105.8 और FM 105.6 से बैक वक्त आप हमारा प्रोग्राम सुन रहे हैं। इस वक्त लाइन पे हमारे साथ हमारे नुमाइंदे रावलाकोट से साजिद महमूद मौजूद हैं। उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि रावलाकोट की क्या सूरत हाल है। हाँ जी, वालेकुम सलाम। साजिद, ये बताइएगा अभी तक क्या सूरत हाल है रावलाकोट की, और वहाँ पे क्या कुछ इंतजामात किए गए इंतजामिया की जानिब से? जी, सुबह जिस तरह आप बात कर रहे थे और जो इस वक्त की जो तक की जो सूरत हाल है वो उस लिहाज से तशवीशनाक नहीं है कि कोरोना वायरस के हवाले से कोई केसेस सामने नहीं आए उस तरह के, लेकिन मुश्तबा अफराद की तादाद जिस तरह बाकी आज़ाद कश्मीर के डिस्ट्रिक्ट में है, जिस तरह से पुंछ डिवीजन में भी अब से थोड़ी देर पहले जो डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन जो हेल्थ DHO जो थे उन्होंने एक लिस्ट फ्राहम की थी मीडिया को, तो उसमें तकरीबन कोई 50 के करीब मुश्तबा लोग इस वक्त भी जो करंटीना सेंटर हैं पुंछ के उनमें मौजूद हैं, लेकिन अब तक कोई किसी का भी जो रिजल्ट है वो पॉजिटिव नहीं आया। ये खुशाइंद बात है। जहाँ तक इंतजामात की बात की जाए तो यहाँ पर जो इंतजामात हैं वो शहर जो है बिलखुसूस अगर हम रावलाकोट की बात करें तो रावलाकोट का शहर मुकम्मल तौर पर यहाँ पर बंद है, सवाए जो ज़रूरी मेडिसिन के हवाले से या जो क्लिनिक वगैरह खुले हुए हैं कुछ वो भी सिर्फ चूँकि गवर्नमेंट की सतह पर बहुत सारे जो होटल्स थे क्लिनिक थे उनको करंटीना सेंटर में भी तब्दील किया गया था। इसके साथ साथ दीगर जगहों पर कुछ हॉस्पिटल वगैरह कुछ निजी इदारे जो थे वो भी गवर्नमेंट ने उनको करंटीना सेंटर बनाया था। तो उसके साथ साथ जो सब्जी फ्रूट की दुकानें हैं जो ऐशिया खुर्दनोश हैं वो खुली हुई हैं, बाकी तमाम जो शहर है वो बंद है और ट्रैफिक भी मुकम्मल तौर पर जो पब्लिक सर्विस गाड़ियां हैं वो तो बिल्कुल भी नहीं चल रही हैं। हाँ, अगर लोग अपनी ज़ाती गाड़ियों में सफ़र कर रहे हैं तो उनको भी इस तरह से इजाज़त है कि अगर कोई शख्स पर पुलिस की नफरी मौजूद है जो ये चेक भी कर रही है, लोगों को देख भी रही है, और जो कमिश्नर हैं पुंछ डिवीजन के हमीद मुगल साहब ये सारे जो मामला थे उनकी निगरानी भी कर रहे हैं। उसके साथ साथ दीगर जो जिम्मेदारान हैं वो भी वक्फे वक्फे से ये देखने में आया है कि हर जगह पर वो पहुंच रहे हैं और अपना जो काम है वो उसको कर रहे हैं। और मुकम्मल तौर पर आप कह सकते हैं कि जो लॉकडाउन के बाद डाटा मौजूद भी है तो उसकी जो कीमत है वो बहुत ज़्यादा है। थोड़ी देर पहले हमारे साथ यहाँ स्टूडियो में मौजूद थे, रावलाकोट वॉइस ऑफ कश्मीर के स्टूडियो में ADC साहब जब यहाँ पर मौजूद थे तो उन्होंने कहा है कि जो प्राइवेट आटा है वो अपनी मर्जी की कीमत लगाई जा रही है और चूँकि ये बताया जा रहा है कि ये क्वालिटी इसकी अच्छी है, बाकी जो गवर्नमेंट की तरफ से जो महकमा खुराक की तरफ से जो आटा फराहम किया जाता है तो वो तो उसी कीमत में है, लेकिन लोगों की शिकायत से बहुत ज्यादा हैं। फिर जो एंट्री पॉइंट्स हैं बिलखसूस रावलपिंडी इस्लामाबाद से आने वाले लोग जो हैं वो बड़ी तादाद में यहाँ जो एंट्री पॉइंट्स हैं उन पर मौजूद हैं, उनको दाखिले की इजाज़त नहीं दी जा रही है। उसके साथ साथ आज ट्रैफिक जो सुबह के वक्त में थी वो मुकम्मल तौर पर बंद रही, जिसकी वजह से जो अखबारात थे वो भी यहाँ रावलाकोट में नहीं पहुँच सके। जो माल बरदार गाड़ियां थी उनके हवाले से कहा जा रहा था कि उनको आने की इजाजत दी जाएगी, लेकिन वो भी बहुत देर तक वहां पर रुकी रही और बहुत वक्फे के बाद जब यहाँ पर इंतजामिया को बताया गया तो उसके बाद उनको इजाजत दी गई और तकरीबन वो दोपहर या बल्कि दोपहर के वक्त में कुछ गाड़ियां जो थी वो आई, तो ये लोगों की यहाँ पर मुश्किलात भी हैं, लेकिन उसके बावजूद चूंकि ये इंतजामिया की तरफ से कहा जा रहा है और हम लोग भी प्रोग्राम कर रहे
हैं अवेयरनेस के हवाले से लोगों को, आप भी यही बता रहे हैं कि जो लोगों की हिफाजत के लिए सारे इकदाम किए जा रहे हैं। तो अगर ओवरऑल इस सारी सूरत हाल को देखा जाए तो लोगों की तरफ से तावन किया जा रहा है, इंतजामिया भी भरपूर काम कर रही है। हम मुकम्मल तौर पर इंतजामिया के साथ रास्ते में हैं। तो रात गए तक इंतजामिया जो है वो भी अपने कामों में लगी रहती है और लोगों की तरफ से भी जो तावन है वो भरपूर तावन किया जा रहा है यहाँ पर। साजिद साहब ये बताएं कि एशिया खुर्दनोश और दीगर जो एशिया ज़रूरी है उनकी कीमतों की क्या सूरत हाल है, क्या महंगाई वहाँ पे भी है, इस हवाले से क्या बताएंगे आप? अमीरुद्दीन मुगल साहब, चूँकि यहाँ पर जो रावलाकोट की अगर बात करें तो यहाँ पे चूँकि आपको अंदाजा है कि जो ज़ाहिर है ये डिवीजनल हेडक्वार्टर है, यहाँ पर कमिश्नर मौजूद हैं, डीसी मौजूद हैं, एडीसी मौजूद हैं। यहाँ से तो इतनी शिकायत नहीं आई हैं, लेकिन जो दीगर शहर हैं जिस तरह बाग से हम थोड़ी देर पहले जो प्रोग्राम कर रहे थे, लोगों ने वहाँ से कहा कि वहाँ जो कीमतें हैं उनमें बहुत ज़्यादा इजाफा किया गया है। इसी तरह से दीगर जो शहर हैं सुदनौती के कुछ शहरों से ये शिकायत जो अपनी मनमानी जो कीमतें हैं वो लोगों से वसूल की जा रही हैं। तो ओवरऑल अगर आप सारी सिचुएशन को देखें तो इतना ज्यादा नहीं रिपोर्ट हुआ है कि जो एशिया खुर्दनोश है उनकी कीमतों में ज्यादा इजाफा किया गया है, लेकिन इंतजामिया की तरफ से ये कहा जा रहा है कि जो अगर थोड़ा बहुत इजाफा है भी तो वो सिर्फ इस बुनियाद पे है कि लोग जो हैं वो ये कोशिश कर रहे हैं, शायद लोगों को ये खदशा है कि कोई खुराक की किल्लत होने वाली है या शायद सप्लाई इसकी बंद हो जाए, तो वो ये कोशिश करें कि ज्यादा से ज्यादा चीजें हासिल करें, तो उसकी वजह से थोड़ी सी मुश्किलात जरूर है। थैंक यू वेरी मच साजिद, बहुत शुक्रिया सर। अच्छा अमीरुद्दीन साहब, जैसे कि साजिद ने बताया रावलाकोट में भी ये बड़ा मसला है कि वहाँ पे भी खुद साख्ता प्राइसेस जो हैं वो बढ़ा दी गई हैं, और इसी तरह मुजफ्फराबाद का भी यही प्रॉब्लम है कि खुद साख्ता। कल मैं डिप्टी कमिश्नर साहब से हमारे प्रोग्राम में बात हुई थी, उन्होंने कहा था कि हम इस पे ज़रूर कोई ना कोई एक्शन लेंगे, लेकिन आज भी मैंने मार्केट चेक की तो सूरत हाल तो वही है, वहीं की वहीं। बिल्कुल, चीज़ें तो मैं खुद चीज़ें ख़रीद रहा हूँ तो मुझे अंदाज़ा है कि चीज़ें महंगी दी जा रही हैं। तो इस हवाले से ये है कि इंतज़ामिया को शिकायत जो है वो अगर की जाए तो वो ज़रूर कार्रवाई भी करते हैं। कुछ आज दुकानें सील की गई हैं, कल भी सील की गई थी, और आज एक हुक्मनामा भी जारी हुआ है कि जो दुकानें जो है महंगी चीज़ें बेचेंगी, जो खिलाफ वर्जी कर देंगी कायदे ज़वाबित जो जारी किए गए, तो उनको सील किया जाएगा। तो मेरे ख्याल में जहाँ पे भी ऐसी बात नज़र आए तो इंतज़ामिया को हम आगाह करें, लोग भी आगाह करें तो ज़रूर इस पर कार्रवाई होगी। तो मेरे ख्याल में लोगों को खुद जो है ना, दुकानदारों को, ख़ासकर हमारे भाई जो हैं उनको इस बारे सोचना चाहिए कि कितने मुश्किल में हम, और वो इस वक्त ही कमाई का वक्त समझते हैं और अभी वो ये काम कर रहे हैं। तो ये मेरे ख्याल में अपने ज़मीर से पूछना चाहिए कि यार दुरुस्त है। एक कॉलर है हमारे साथ, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो। अच्छा, कुछ देर पहले हम एक नोटिफिकेशन पढ़ रहे थे डिप्टी कमिश्नर साहब की तरफ से, वो शेयर करेंगे आप लिसनर्स से? आज मुख्तलिफ जो फैसले किए गए हैं ना, एक तो ये है कि जो करंटीना सेंटर है मुजफ्फराबाद का, उसका जो इंतज़ाम इंसराम है, उसकी देखभाल निगरानी के लिए चौधरी इम्तियाज़ जो कि डीजी हैं सिविल डिफेंस के, उनको जो है वो फोकल पर्सन उनका मुकर्रर किया गया है। इसके अलावा जो है कायदे ज़वाबित जारी किए गए हैं। एक तो वो जो है ना पेट्रोल पंप, उनके हवाले से कायदे ज़वाबित ये जारी किए गए हैं कि वो कोई भी पेट्रोल पंप जो है वो 18 साल से कम उम्र शख्स को डीजल पेट्रोल फराहम नहीं करेगा। दूसरा यह है कि मोटरसाइकिल जो है उनको सिर्फ 1 लीटर डीजल दिया जाएगा, और हाँ पेट्रोल दिया जाएगा, और उसके जो मोटरसाइकिल वाले के क्वायफ जो है वो मुरतब किए जाएंगे पेट्रोल पंप वालों की तरफ से। जबकि जो सरकारी गाड़ियां हैं, जो प्राइवेट गाड़ियां हैं, वो सरकारी गाड़ियां हैं, जिसको भी पेट्रोल दिया जाएगा उसकी भी तफसील मुरतब की जाएगी। और दूसरा ये है कि पेट्रोल पंप मालकान जो है 10,000 लीटर तक वो अपने पास ज़ख़ीरा ज़रूर रखेंगे पेट्रोल का, ये क्योंकि कोई भी इमरजेंसी हो सकती है, इतना पेट्रोल उनके पास होना चाहिए। बिल्कुल। उसके अलावा ये है कि 2 से ज़ायद अफराद जो है वो पेट्रोल पंप पे एक वक्त में नहीं होंगे, और अगर इसकी खिलाफ वर्जी होती है तो इस पर कार्रवाई होगी। इसके अलावा दूसरा जो नोटिफिकेशन है वो भी बड़ा अहम है। वो इस तरह के वो जारी किया गया, मेडिकल स्टोर्स
کریانہ سٹور، سبزی فروٹ، ملک شاپ جو ہے، ڈیری وغیرہ کی شاپ جو ہیں، اور مچھلی، LPG ڈیزل ڈیلرز اور بیکری کے لیے یہ جو ہے وہ کیا گیا ہے. اس کے لیے یہ قواعد ضوابط ہے کہ یہ دکانیں جو ہے صبح 8 سے شام 6 بجے تک کھلیں گی. پھر دکانوں کے بعد جو ہے وہ لگائے جائیں گے نشان فاصلے پہ، تو ان نشانوں پہ سرکل بنائے جائیں گے جہاں پہ کھڑے ہوں گے ایک مخصوص فاصلے پہ لوگ، اور ایک وقت میں ایک ہی گاہک جو ہے دکان کے اندر جا سکے گا. اور جو شاپ ہے اس پہ روزانہ اس کے بعد جو صفائی ہوگی، اسپرے ہوگا، چونا چھڑکا جائے گا. ذخیرہ اندوزی جو ہے وہ بھی بالکل نہیں کرنے کی اجازت، اور نہ ہی قیمتیں بڑھانے کی اجازت ہے. اگر کوئی دکاندار اس کی خلاف ورزی کرتا ہے تو اس کے خلاف بھی کارروائی ہوگی. تو یہ 2-3 حکم نامے آج جو ہے ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ مظفر آباد کی طرف سے جاری کیے گئے ہیں. اچھا، امیر الدین مغل صاحب اس وقت ہمارے ساتھ لائن پہ موجود ہیں، اورنگزیب جرال، ان سے ہم جاننے کی کوشش کریں گے مظفر آباد شہر کی تازہ ترین صورتحال. السلام علیکم اورنگزیب صاحب. جی وعلیکم السلام. رنگزیب صاحب یہ بتائیں کہ کیا تازہ ترین تفصیلات ہیں آج مظفر آباد شہر کی؟ گورنمنٹ سطح پہ کیا کچھ نئے احکامات جاری کیے گئے؟ لاک ڈاؤن کا دوسرے روز بھی جو ہے وہ تقریباً لاک ڈاؤن رہا ہے، اور صبح سویرے میں نے دیکھا ہے کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ کوہالہ سے آ رہے تھے. بیسیکلی یہ سارے لوگ جو ہیں وہ کل سے جو کوہالہ کراس کر کے رات کو مختلف جگہوں پہ پھیرے تھے، اور اس میں سے متعدد لوگ جو تھے وہ وادی نیلم سے جن کا تعلق تھا وہ لوگ سفر کر رہے تھے. تو آج جو ہے وہ کیونکہ شہر کے اندر ایک انٹری کہیں کسی چیک پوسٹ نہیں ہو سکتی ہے، تو وہاں پہ بڑی تعداد میں لوگ وہاں موجود ہیں. اور اسی طرح ادھر دوسرا جو ایئرپورٹ ایریا ہے وہاں سے بھی جو ہے وہ بند ہے. تو شہر کے اندر سے جو پہلے سے موجود تھے آلریڈی آج جو ہے دکانیں بھی اس طرح زیادہ نہیں کھل پائی ہیں. اور مرکزی شہر سے بھی ہمیں کچھ کالیں ہیں کہ لوگ جو ہیں وہ چاہ رہے ہیں کہ کچھ نہ کچھ کسی ایک وقت مقرر کیا جائے ڈپٹی کمشنر کی طرف سے، اور جو سینیٹیشن کا جتنا بھی کام ہے یا جو بھی سینیٹائز کر کے لوگوں کو جیسے میڈیکل اسٹوروں پہ ہو رہا ہے اس طرح جو ہے ہمیں اجازت دی جائے. تو بہرحال انہوں نے بات لکھ لیا ہے کہ شہر کے اندر آج لاک ڈاؤن کی سچویشن بہت ہی بہتر رہی ہے، لیکن ابھی بھی مزید لوگوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ جو لاک ڈاؤن ہے وہ ان کے لیے ہے، اور مزید جو ہے وہ لوگوں کو جو ہے اس سے زیادہ سے زیادہ باہر نکلنے سے گریز کرنا چاہیے. باقی جو ہے وہ جو مظفر آباد میں کرسینا سینٹر ہے اس میں 18 سے زائد لوگ جو ہیں اس وقت موجود ہیں، اور کچھ جو ہیں 3 ایک لوگ جن کا بتایا جا رہا ہے کہ وہ ان کو ان میں نیگیٹو رپورٹ آئی ہے، ان کو یہاں سے بھیج دیا گیا ہے. اور آج جو ہے وہ ایک ہی ابھی تک جو ہے ہمارے موجود ہے. اس کے علاوہ جو کرونا وائرس کا اس کا بھی کہہ رہے ہیں کہ وہ کافی بہتر ہو چکا ہے اور صحتیاب ہو چکا ہے. جی صحیح، تھینک یو ویری مچ اورنگزیب. اچھا مغل صاحب، چھٹیوں کے حوالے سے اسکول کیونکہ بند ہیں، بچے گھر پہ ہیں، اور اس حوالے سے بھی آج ایک محکمہ تعلیم کی طرف سے نوٹیفیکیشن آیا ہے کہ چھٹیاں جو ہیں وہ اب بڑھا دی گئی ہیں. بالکل، وزیر اعظم آزاد کشمیر کی حوالے سے بھی ہمیں جو معلومات ملی ہیں جو ہے وہ مئی کے تک جو ہے وہ چھٹیاں بڑھا دی گئی ہیں، اور جو گرمیوں کی چھٹیاں ہیں وہ اب نہیں ہوں گی کیونکہ پہلے ہی بہت زیادہ چھٹیاں ہو چکی ہیں. تو اس لیے یہ چھٹیاں آگے جو ہے توسیع کر دی گئی ہے. اس میں تمام جو سرکاری اور نجی تعلیمی ادارے ہیں وہ بند رہیں گے، اور اس کے بدلے میں جو گرمیوں کی تعطیلات ہوتی تھی اس سال وہ نہیں ہوں گی. جو ابھی تک کی جو وزیر اعظم ہاؤس کی جانب سے جو ہمیں ڈیٹیل ملی ہے اس کے مطابق وزیر اعظم نے جو ہدایات دی ہیں وہ 31 مئی تک جو ہے توسیع کی گئی ہے. اسکول، تعلیمی ادارے سارے نجی اور سرکاری وہ بند. اگر حالات سازگار ہوئے تو 31 مئی کے بعد جو ہے نیا تعلیمی سلسلہ جو ہے وہ شروع ہو جائے گا. بالکل. اور انہی چھٹیوں کو جو ہے وہ گرمیوں کی چھٹیاں کنسیڈر کیا جائے. بالکل، گرمیوں کی چھٹیوں کی اب گنجائش بھی نہیں رہتی. جب اتنے تعلیمی ادارے اتنا ٹائم بند رہیں گے تو پھر میرے خیال میں آگے چھٹی پھر تو سال کا جو ہے بیشتر حصہ اس میں چلا جاتا ہے. تو اس حوالے سے یہ ہے کہ والدین سے یہ گزارش ہے کہ وہ گھروں میں بچوں کو ان کی تعلیم پہ توجہ دیں تاکہ بچوں کا وقت ضائع نہ ہو اور ان کو فضول مشاغل میں نہ الجھنے دیں. اور کچھ اداروں کا یہ بھی پتہ چلا ہے کہ وہ آن لائن کچھ کر رہے ہیں کہ بچوں کے ساتھ
تو اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ ابھی مجھے کسی نے بتایا کہ اب سچ ہے یہ نہیں کہ پی ٹی وی کوئی اسٹیشن چینل لانچ کر رہا ہے اس حوالے سے کہ اس میں ریڈیو سے تعلیمی بات کروں سر، پروگرام ایک ہوں منٹ گے. ہولڈ پہ رہیے گا، آپ کو لائیو لینا. آپ ایک تو لیٹ ہو گئے، میں ابھی بازار میں ہوں تو پھر 2 منٹ بات کرنی ہے سر صرف. اچھا لے لیں سر. جی جی ایک منٹ. جی سامعین، اس وقت ہمارے ساتھ لائن پہ موجود ہیں یاسین بیگ صاحب جو کہ ایس ایس پی مظفر آباد ہیں. ان سے ہم جاننے کی کوشش کریں گے تازہ ترین کیا صورتحال ہے. بہت مہربانی یاسین بیگ صاحب، آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں، قیمتی وقت دینے کا. ظاہر آپ مصروف بھی بہت ہوں گے، آپ کی مصروفیت کا ہمیں اندازہ ہے. صرف یہ بتا دیں کہ کیا صورتحال ہے انٹری پوائنٹ پر. آج خاص کر کوالا میں کافی لوگوں کی آمد ہوئی تھی پنجاب کے مختلف شہروں سے، تو ان کا کیا بنا؟ وہ ان کو کیا اسکریننگ کر کے ان کو گھروں کی طرف جانے کی اجازت دی گئی ہے؟ اس حوالے سے ہمیں بتا دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت مہربانی جی، اس امپورٹنٹ ایشو کے اوپر آپ نے وقت دیا اور لائیو دیا. ایسا ہے کہ جو کوالا کے اوپر بھی لوگوں کو روکا ہوا تھا کہ یہ ذرا لوگوں سے زیادتی ہوتی کہ اگر لوگ کوئی بندہ پنڈی کا ہے، پنڈی میں کام کر رہا تھا، لاہور میں کر رہا تھا یا کراچی میں کر رہا تھا اور واپس آ کے اگر وہ کوالے میں اسٹک ہو کے رہ گیا تھا اور اپنا گھر اس کا اگر چناری میں ہے یا وادی نیلم میں ہے کسی جگہ پہ، وہ سینٹر میں خراب ہوتا ہے، اس کی پراپر اسکریننگ کروا کے ان کا اعداد و شمار دے کے تو ان کو گھروں تک پہنچا دیا گیا ہے. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ پورے ڈسٹرکٹ کے اندر اللہ کی کرم والی سے جو ہے نا مکمل طور پہ لاک ڈاؤن ہے اور لوگ اس میں کوآپریٹ بھی کر رہے ہیں. جو ایڈمنسٹریشن، لا انفورسمنٹ ایجنسیز جو اپنا کردار ہے وہ بھی ادا کر رہے ہیں. بیگ صاحب، لاک ڈاؤن کی آج ہم نے صورتحال دیکھی، کافی بہتر رہی پہلے سے، لیکن آپ ایک بات یہ بتائیں کہ کوئی پنجاب گورنمنٹ سے یا جو آپ کے ساتھ جو ڈسٹرکٹ لگتے ہیں جس طرح مری ہے یا ایبٹ آباد کے ہیں، ان سے کوئی ان کی انتظامیہ سے بات کی گئی ہے؟ آپ کی طرف سے کوآرڈینیشن کی گئی ہے کہ جو لوگوں کو وہ اس طرح موومنٹ کرنے دے رہے ہیں، گاڑیاں چلنے دے رہے ہیں اور وہ لوگ آ رہے ہیں، برڈن سارا آپ پہ پڑ رہا ہے، اس حوالے سے کیا اقدامات کیے ہیں؟ ہمارے جو ملکہ ڈسٹرکٹ ہیں ان کے ڈی سی او سے ڈی پی او سے ہمارا رابطہ ہے. ان کی گورنمنٹ کی جو پالیسی ہے اس مطابق وہ عمل کر رہے ہیں اور اگر جو لوگ وہاں سے نکل کے اپنے گھروں کی طرف آ رہے ہیں تو ان کے سلسلے میں پھر وہ بھی کوآپریٹ کرتے ہیں. ایک بندہ اپنی گھر کی طرف جا رہا ہے تو وہ بھی نہیں روکتے. اور ہماری بھی پالیسی کوئی اس طرح کی کہ ان کو سیفلی اسکرین کرنے کے بعد ان کو اپنے گھروں تک پہنچنے دیں. ٹھیک ہے سر، بہت شکریہ آپ کا قیمتی وقت دینے کا. تو انشاءاللہ پھر آپ سے رابطہ رہے گا. ظاہر آپ کی مصروفیت بہت ہیں. بہت شکریہ، آپ نے اپنا وقت دیا. تھینک یو ویری مچ. اچھا ٹھیک ہے. یاسین بیگ صاحب بہت مصروف ہیں جی. ہم نے دیکھا کہ ڈپٹی کمشنر مظفر آباد بھی کافی مصروف نظر آتے، دن کو ان کی موومنٹ رہتی ہے. تو بہرحال جو کام ہو رہا ہے اس کو ہم سب نے مل کر تعاون کر کے بہتر بنانا ہے. تو آج کالے کی جو صورتحال تھی جو انہوں نے بتایا کہ لوگوں کو اسکریننگ پراپر کر کے جانے دیا ان کو، یہ بھی ایک اچھی بات ہوگی کہ کم کم اسکریننگ جو ہے وہ لوگوں کو کر کے جانے دیا جا رہا ہے. ظاہر ہے لوگ جو ہے وہ دور دور سے آ رہے ہیں. اب ریاست ان کو روک بھی نہیں سکتی کہ وہ اپنے گھروں میں آ رہے ہیں، لیکن ان کو پراپر طریقے سے اگر آنے دیا جائے تو میرے خیال میں یہ بہتر ہے. لیکن لوگوں کو اب چاہیے کہ وہ موومنٹ نہ کریں زیادہ، ان کے لیے بہتر یہی ہے. کیونکہ شرعی طور پہ بھی ایسا ہے اور سائنسی طور پہ بھی یہی ہے کہ آپ جہاں پہ وبا ہو وہاں سے نہ جائیں اور نہ وہاں پہ آئیں کہیں سے باہر سے. تو اس لیے لوگوں کو تعاون کرنا چاہیے اپنے لیے اور اپنے عزیز و اقارب کی بہتری کے لیے. سامعین، آپ سن رہے ہیں پروگرام وی او کے انفارمیشن ڈیسک. میں ہوں آپ کے ساتھ محسن صحاب اور
मेरे साथ मौजूद हैं अमीरुद्दीन मुगल। और इसके साथ साथ आपको बताते चलें कि ये प्रोग्राम रोज़ाना हम 5 से 6 बजे आपके लिए लेकर आते हैं, और इस प्रोग्राम में हम डिस्कस करते हैं आपके मसाइल के हवाले से। अगर आपका भी आपके जहन में कोई सवाल हो, कोई किसी किस्म का मसला हो, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर है 05822444105। अगर आला हुकाम से कोई सवाल है आपका तो ज़रूर आप कॉल कीजिएगा हमारे इस लाइव प्रोग्राम में, और आप प्रोग्राम के बाद भी कॉल करके अपना जो पैगाम है, जो मैसेज है या कोई सवाल है आपका, तो आप हमारे स्टूडियो में लिखवा सकते हैं, और हम कोशिश करेंगे कि कल के प्रोग्राम में आपका सवाल हम उस शामिल कर सकें। सामीन, इसके साथ साथ कोरोना से अपने आप को बचाएं। अपने हाथ जो हैं साबुन से बार बार धोएं, और कोशिश करें कि बिला ज़रूरत घरों से बाहर ना निकलें। अगर शायद ज़रूरत आपको ख़रीदनी हो तो घर के एक बंदे को डेडिकेट करें। और गवर्नमेंट ने शायद ज़रूरत की तमाम दुकानें खुली रखी हुई हैं, और नोटिफिकेशन के मुताबिक शाम 6 बजे तक जो हैं वो दुकानें खुली रहेंगी, क्योंकि पहले 7 बजे तक का आई थिंक नोटिफिकेशन था, लेकिन अब 6 बजे तक का टाइम उन्होंने 8 से 6 8 से 6 सुबह 8 से 6 बजे तक जो है वो दुकानें खुली रहेंगी, जिनमें गोश्त, सब्जी और मेडिसिन की दुकानें शामिल हैं। और जब भी बाहर निकलें कोशिश करें कि ग्लव्स और मास्क पहनकर घर से बाहर निकलें, और वापस जाकर फ़ौरन साबुन से हाथ धोएं। अगर सैनिटाइज़र मौजूद हो तो अपने हाथों को मुकम्मल सैनिटाइज करें। और इसके साथ साथ बाइकर्स के ख़िलाफ़ सख्ती की जा रही है। हमारे जितने सिक्योरिटी के काम हैं उनकी जानिब डबल से सवारी जो है उसके वाले से उनकी पाबंदी है कि डबल सवारी ना बैठे। हाँ, क्योंकि उनकी तरफ से अहकामात जारी किए गए हैं कि डबल सवारी और बाइक पे आप बाहर नहीं निकल सकते। अगर आपने कोई बहुत ही ज़रूरी काम के कुछ अशिया खुर्दनोश खरीदनी है तो आप पैदल जा सकते हैं। और इसके अलावा एक सबसे इम्पॉर्टेंट मुगल साहब बात यह है कि हमें इस वक्त मौजूदा सूरत हाल में अशिया खुर्दनोश जितनी ज़रूरत हो उतनी ख़रीदनी चाहिए, ना कि उससे ज़्यादा ख़रीदारी करें। बिल्कुल, जितनी हमें ज़रूरत है इतनी ख़रीदनी चाहिए। ज़ख़ीरा अंदोज़ी करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अल्लाह ना करे ऐसा कोई हालात नहीं है कि आपको खाने पीने की चीज़ें ना मिले। मुज़फ़्फ़राबाद शहर में भी इतने लॉकडाउन के बावजूद मुझे अभी तक तो मसला नहीं हुआ खाने पीने का, क्योंकि मैं खुद इंसार कर रहा हूँ बाज़ारों पे ही। मुझे घर तो मेरा यहाँ पे है नहीं है, तो इसलिए ये लालच ना करें और दूसरों का भी ख्याल करें। आपको जितनी ज़रूरत है लें, और बाकी जो है वो दूसरों के लिए भी छोड़ें, ताकि हर किसी की ज़रूरत पूरी होती रहे। तो सूरत हाल ये है कि अभी तक बहुत ज़्यादा कोई किल्लत नहीं पैदा हुई बाज़ारों में अशिया खुर्दनोश की, और दूर दूर जो इलाके हैं उनमें भी सूरत हाल बेहतर ही है। अभी कोई शेयर जो है ना ज़्यादा। हाँ, दूसरा ये भी है ना कि आप ज़रूरत से ज़्यादा जब चीज़ें लेके घर में स्टॉक करेंगे तो ग्राहक फरोशों को जो है वो मौका मिलेगा। डेफिनेटली ग्राहक फरोशों को तो बहुत ज़्यादा मौका हाँ, मिलेगा। वो दुकानदार जो है वो खुद साख्ता जो है चीज़ों के रेट्स बढ़ा रहे हैं। मतलब आपने खुद गौर किया होगा कि कल की निस्बत आज अगर आप कोई चीज़ लेने लग गए हैं तो आपको 10, 15, 20 रुपए वो चीज़ महंगी मिली है, और साथ ये बताया जाता है जी कि चीज़ों की शार्टेज है या हमें चीज़ें नहीं मिल रही। हालांकि ऐसा नहीं है। गवर्नमेंट की तरफ से बार बार ये अनाउंसमेंट की जाती है कि हम जो सप्लाई चेन है उसको बिल्कुल भी मुतासिर नहीं होने देंगे। हम कोशिश, हमारी 100% ये कोशिश रहेगी कि लोगों को बर वक्त चीज़ें यहाँ पर मिलें। और इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट बात यह है आपके लिए कि गैर ज़रूरी सफ़र से हमेशा गुरेज करें, क्योंकि अभी बता दिया गया है कि जितने एंट्री पॉइंट्स हैं उनको बंद कर दिए गए। आज़ाद कश्मीर के ना अंदर आ सकते हैं आप जो बाहर हैं, और जो अंदर हैं वो बाहर नहीं जा सकते। तो इसलिए बिल्कुल भी कोशिश ना करें कि आपको किसी परेशानी का सामना करना पड़े। जहाँ पे मौजूद हैं अपने आप को अपने घरों के अंदर मसरूफ़ रखें, और कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ अपने लिए अरेंज करें कि आप अपना टाइम अच्छी तरह अपने घर में अपनी फैमिली के साथ स्पेंड कर सकें। ओके करिए फोन जो 15 मिनट है और किसी में नहीं। खुद ही किसी मसले पर डिस्कशन शुरू कर दो। आगे ना मेरी बारी गल कर दो। वेलकम बैक। प्रोग्राम आप सुन रहे हैं वोक न्यूज़, वोक इन्फॉर्मेशन डेस्क, और मुझे कहते हैं मोहसिन साहब, और मेरे साथ अमीरुद्दीन मुगल मौजूद हैं। अमीरुद्दीन साहब, वादी नीलम की क्या सूरत हाल है, क्योंकि आप वहाँ के रहने वाले हैं और आप लोगों से
वेल कनेक्टेड हैं, वहाँ की क्या सूरत हाल है, उस अपडेट के बारे में हमें बताइए। नीरम वैली की सूरत हाल जो है वो कदरे बेहतर है, क्योंकि अभी तक वहाँ पे कोई जो है वो केस तो नहीं आया। आज़ाद कश्मीर पूरे में अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक एक ही केस है, लेकिन ये है कि ख़तरा नीरम वैली में बहुत ज़्यादा है। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ शहरों, कराची से लेकर इस्लामाबाद तक मुख्तलिफ़ शहरों से बड़ी तादाद में लोग जो है वो वापस आए हैं अपने घरों को, जिनमें मजदूर पेशा लोग भी हैं, मुख्तलिफ़ फैक्ट्रियों में काम करने वाले हैं, उसके बाद स्टूडेंट हैं, और वो काफ़ी तादाद में आए हैं। और उसका ये मसला है कि उससे ख़तरा है कि कहीं कोई ऐसा आदमी ना हो उनमें कि जो वायरस से मुतासर हो और उससे आगे और लोग मुतासर हो जाएं। तो ये एक बड़ा मसला है। और दूसरा ये है कि नीलम वैली और लीपा वैली ऐसे ठंडे इलाके हैं, जिनमें रावलाकोट भी आज़ाद कश्मीर के ठंडे इलाकों में, वैली के इलाके हैं, बाह के वाला इलाके। यहाँ पे सर्दियों में जो है, गर्मियों में भी जो है वो टेम्परेचर बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ता, 25, 27, 28 इस तरह 30 तक जाता है। तो यहाँ पर वायरस जो है वो ज़्यादा टाइम रहने का इम्कान होता है और इससे ज़्यादा ख़तरा हो सकता है। इसलिए इस इलाके के हवाले से, खासकर नीलम वैली के हवाले से, ये जो मसला है इसकी ज़्यादा फ़िक्र है कि कहीं हमें आगे मुश्किलात ना पेश आए। वैसे तो स्क्रीनिंग हो रही है, लेकिन यह है कि फिर भी कहीं ना कहीं खतरा कर रहा हूँ, 2 मिनट रहता बात है। हो सकती है लाइव कॉल पे। जी होल्ड पे रहिएगा। अच्छा, मीरुद्दीन मुगल साहब इस वक्त हमारे साथ लाइन पे मौजूद हैं, डिप्टी कमिश्नर मीरपुर मुमताज़ साहब। उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि मीरपुर की क्या सूरत हाल है। अस्सलाम वालेकुम ताहिर मुमताज़ साहब, क्या हाल है आपका? ठीक है, बहुत शुक्रिया आपने टाइम दिया। ज़ाहिर है आपकी मसरूफियत बहुत ज़्यादा है, इन दिनों बहुत ही ज़्यादा बढ़ गई हैं। तो ये बताएं मीरपुर की ओवरऑल जो स्क्रीनिंग हो रही है या एंट्री पॉइंट की सूरत हाल क्या है? क्योंकि हमने एक फ़ोटो देखा है सोशल मीडिया पे कि मंगला पुल पे जो है वो काफ़ी रश लगा हुआ था, गाड़ियाँ भी और लोग भी। तो क्या सूरत हाल है आपके डिस्ट्रिक्ट की इस हवाले से? हाँ जी, मंगला और जो दान गली हैं वो पीएम साहब के अनाउंसमेंट के बाद हमने बंद किए हुए हैं और डिस्ट्रिक्ट के अंदर एंट्री जो है वो डिनाइड है। सेकंड, चूँकि ये यहाँ पे मंगला पे हमारे पास मंगला डैम है और आईएसको की काफ़ी बड़ी तादाद होती है जो मंगला के दूसरी तरफ भी रहती है, मंगला में रहती है, उनको हम अलाउ करते हैं आने जाने के लिए। वो चूँकि अलाउड हैं एसेंशियल सर्विसेज में, अदरवाइज हमने एंट्री डिनाई की हुई है। सही। और इससे पहले जो हमारे पास तकरीबन कोई 5,000 के करीब हमने लोग स्क्रीन किए थे पिछले हफ्ते से, जब से ये 6 मार्च से। ठीक है, उनका फॉरेन ट्रेवल हिस्ट्री है उनको। सही। अच्छा सर, ये बताएं लॉकडाउन के हवाले से क्या सूरत हाल है, लोग ताउन कर रहे हैं इंतजामिया के साथ या नहीं? हाँ, ताजरों की तरफ से तो भरपूर तावन है, उन्होंने अपनी जो जो शॉप अलाउड थी वही खोली हुई हैं। हाँ, लेकिन जिस तरह से हम कौम डिसिप्लिन हमारी कौम का है, उसमें थोड़ी बहुत इश्यूज आते हैं। लोग अपने घरों में स्पेशली बच्चे जो उनके हैं उनको रोकने की कोशिश नहीं करते। वालिदैन अभी हमने काफ़ी सख्ती की हुई है। ठीक है। और ऑलमोस्ट सारे मेन चौक चौराहे ब्लॉक कर दिए हैं ताकि लोगों को घरों के अंदर रखा जाए। तो इंशाल्लाह हम भरपूर कोशिश करेंगे और उनको घरों के अंदर रखें। अच्छा सर, ये बताएं कि वहाँ पे आपने करंटीना सेंटर कहाँ पे इंतजामिया ने कायम किया और इसके अलावा अभी उसमें कितने लोग जो हैं वो मौजूद हैं? हमारा क्वारंटीन सेंटर जो है वो मुहिद्दीन इस्लामिक हॉस्पिटल के अंदर है और जो मेजर है, वैसे तो हमारे हमने को 5-6 फैसिलिटीज हैं यहाँ हमारे पास जो क्वारंटीन की हैं। ठीक है। तो उसके अंदर कुछ 17 लोग हैं हमारे पास। अच्छा, तो सर उनके टेस्ट करवाए गए हैं, टेस्ट आ चुके हैं उनके, क्या अभी किस हमने भिजवा दिए, अभी तक रिजल्ट वेटेड है। अच्छा ताहिर मुमताज़ साहब, आखिरी बात ये बता दें कि आपके यहाँ तो आपका डिस्ट्रिक्ट जो है वहाँ बहुत ज़्यादा जो फॉरेन से लोग आते जाते रहते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग जो है इंग्लैंड में और दीगर यूरोपियन कंट्रीज़ में। तो अभी आमद का सिलसिला है या रुक गया है इस वक्त? नहीं, आमद का सिलसिला तो नहीं है अभी, क्योंकि आपने देखा होगा उन्होंने फ्लाइट ब्लॉक कर दी हैं अपनी यूके वालों ने। उसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट है कि हमने ऑलमोस्ट सारे ही ट्रेस किए हुए हैं, पहले भी उनको स्क्रीन किया है और 2 दिन पहले हमने उनको रीविजिट का सिलसिला शुरू किया था, जो आज तकरीबन 70
70% हो गया, और कल के दिन में हम जो मैक्सिमम तादाद हमारे पास, हम उनको एक रिविजिट भी उनका मुकम्मल कर लेंगे, जिसमें हम उनको देखते हैं, उनके दोबारा वाइटल लेते हैं, जो किसी को कोई इशू तो नहीं है, और जिसमें कोई हल्की फुल्की हमें सिम्टम नज़र आती हैं तो उनको हम हॉस्पिटल ले आते हैं और यहाँ पे उनको चेक करके उसके बाद जो डिसाइड करते हैं कि इनमें वापस जाना है या हमारे पास ही रहना है। हाँ जी, बहुत शुक्रिया ताहिर मुमताज़ साहब वक्त देने का। आपकी मसरूफियत भी बहुत ज़्यादा है। अल्लाह आपको कामयाब करे अपने कामों में, अपनी ड्यूटी में, और हमें जो है सबको इस आफत से बचाए, और अल्लाह हमारे लोगों को बचाए और हमारे मुल्क को बचाए। तो बहुत शुक्रिया आपका, बहुत मेहरबानी। थैंक यू। ताहिर मुमताज़ साहब ने जो बात बताई है ना कि उनका डिस्ट्रिक्ट बहुत वर्नरेबल है, हाँ क्योंकि जी। वहाँ पे 4000 के लगभग जो है लोग फॉरेन से आए, और फिर वहाँ पंजाब के उनके साथ लगता है 2 उनके एंट्री पॉइंट है, और काफ़ी ज़्यादा मसला है। लेकिन अभी तक कोई उस तरह से केस सामने नहीं आया, सिवाय एक जो कि ज़ायरीन था वही आइडेंटिफाई हुआ, और इस्लामाबाद आज़ाद शिफ्ट कश्मीर का वाहिद केस वही है। तो ये बड़ी अल्लाह की तरफ से करम नवाजी है। और जो मैंने रश की बात की थी तो वो मुझे अभी समझ आई कि क्योंकि वो वापडा का वहाँ पे जो पावर हाउस का, और उसके अलावा वापडा मंगला की जो कॉलोनी है उनका आना जाना भी बहुत रहता है, तो वो गाड़ियाँ भी काफ़ी ज़्यादा हो जाती हैं। फिर कुछ ना कोई तो गाड़ियाँ और भी आ रही होती हैं जिनको अलाउ होता है, ट्रेवल कर रही होती हैं। तो चलें, अल्लाह बेहतर करे। ओवरऑल आज़ाद कश्मीर गवर्नमेंट के बड़े अच्छे इकदाम हैं। मतलब जिस तरह उन्होंने टाइमली लॉकडाउन किया, एंट्री पॉइंट्स बंद कर दिए, और बाकी तो चलें आगे अल्लाह की मर्ज़ी है, लेकिन इंतज़ाम अच्छे हैं। सिर्फ ये है कि आवाम को इनके साथ ताउन करने की ज़रूरत है। बिल्कुल। पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि सिंध और आज़ाद कश्मीर दो जगह, दो ऐसे जो एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ की थी, हुकूमत थी, इन्होंने कोई जो है ना आए बाएँ शाये नहीं किया, बल्कि एकदम स्ट्रिक्टली उन्होंने कहा कि लॉकडाउन, और लॉकडाउन फिर बाकी मुल्क को भी उस पर आना पड़ा लॉकडाउन की तरफ से। और जाहिर है अवाम ना ताउन करें तो ये कामयाब नहीं होता। तो मेरे ख्याल में लोगों में अवेयरनेस आने लगी है। आज के दिन जो हमने देखा तो लॉकडाउन काफ़ी बेहतर रहा पहले की निस्बत। तो आगे भी सब हम अगर मिलकर अपना किरदार अदा करें, लोगों को बताएं, तो मेरे ख्याल में लोग ये बात समझ रहे हैं, और रफ्ता रफ्ता इसको समझ आएंगे कि उनकी बेहतरी के लिए थोड़ी सी तकलीफ बर्दाश्त करेंगे, हमेशा का सुख पाएंगे। इसलिए मेरे ख्याल में मेरे ख्याल में रूस या किसी और मुल्क की बात है कि वहाँ के हुकूमत ने या वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि आप फैसला कर लें अवाम को कि आपने 15 दिन घर में रहना है या 5 साल जेल में रहना है। हाँ, सही तो है। मेरे ख्याल में ये वो एक मिसाल है कि आप फैसला कर लें कि ये कुछ दिन आपने महदूद रहना है या आगे इतनी बड़ी मुसीबत आपने अपने सर लेनी है। तो मेरे ख्याल में लोगों को समझ आ रही है और बेहतरी की तरफ जा रहे हैं हालात। अच्छा, मेरे ख्याल में एक वजह ये भी है एंट्री पॉइंट्स पे रश होने की, लोगों की बहुत ज़्यादा आने की, कि अभी तक जो फिगर टीवी पे बताए जाते हैं या मीडिया पे बताए जाते हैं उनमें आज़ाद कश्मीर के एक ही केस है, और शायद लोग ये समझते हैं कि आज़ाद कश्मीर सेफ जगह है। जो आज़ाद कश्मीर के लोग बाहर काम कर रहे हैं वो उनकी कोशिश है कि हम अपने घरों को लौट जाएं। देखें, अगर हम गिलगित बल्तिस्तान को देखें, आबादी के तनासब से आज़ाद कश्मीर से निसफ आबादी है गिलगित बल्तिस्तान की, लेकिन वहाँ के केस अभी जो है देखें 100 के लगभग पहुँच के एक डेथ भी हो चुकी है। तो इस वाले से अल्लाह का करम है, आज़ाद कश्मीर में बेहतरी है। दूसरा ये है कि ये जो लोगों का रश है, ये असल में जो लोग वहाँ पाकिस्तान में मुख्तलिफ शहरों में काम कर रहे थे, अचानक इनको छुट्टियाँ हुई तो ये अपने घरों की तरफ आ रहे हैं, और अब मेरे ख्याल में ये रश भी कम हो जाएगा। आज के बाद आपको ये सूरत हाल नहीं मिलेगी जो आपको हाल में थी। अब जो है लोग आएंगे भी कम, और क्योंकि लोगों को अब मालूम भी हो गया कि अब लॉकडाउन सख्त हो गया और उनको नहीं जाने दिया जाएगा, और अब इसमें कमी आएगी और हालात बेहतरी की तरफ जाएंगे। ये 2-3 दिन थे जिसमें लोग घरों की तरफ आ रहे थे, तो काफ़ी ज़्यादा इससे मसला हो रहा था। तो अगर इसकी प्रॉपर स्क्रीनिंग करके अगर कोई आ रहा है उसको भेजा जाए तो मेरे ख्याल में इस से जो मूवी मर्ज है इससे बचा जा सकता है। राइट जनाब, आप सुन रहे हैं प्रोग्राम VOK इन्फॉर्मेशन डेस्क। मुझे कहते हैं मोहसिन सियाब, और मेरे साथ मौजूद हैं अमीरुद्दीन मुगल। क्योंकि आज प्रोग्राम में काफ़ी सैर हासिल गुफ्तगू की, हमने बाकी तमाम अजला की जानकारी आपको दी। जहाँ पे हमारे रिपोर्टर मौजूद थे हमने उनसे बात की, और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को काफ़ी जानकारी हासिल हुई होगी इस हवाले से। प्रोग्राम के आखिर में अमीरुद्दीन मुगल साहब क्या पैगाम देंगे हमारे सुनने वालों को?
पैगाम तो यही है मौसम भाई कि आज पहले तो दुआ है मेरी तरफ से। आज मैं आपको बात बताऊं, मैंने एक चाइना के ओवर मुस्लिम की दुआ की एक वीडियो मेरे पास आई, मैंने सुनी। वो छोटी छोटी बच्चियां जो है वो दुआ कर रही हैं। मुझे ओवर ज़ुबान समझ तो नहीं आई, लेकिन ये है कि उनकी ज़ुबान, उनकी जो दुआ थी ना, उसमें इतना असर था कि मैं बेसाख्ता रो पड़ा। और मैं ये आप दावा करता हूँ कि आप अगर सुने और कोई और भी सुने उस दुआ को, वो भी यकीनन उसकी आंखों से आंसू निकल आएंगे। यानी कि इतना दिल से, इतने दिल के अंदर से वो दुआ कर रहे थे। तो पहली बात यह है कि हमें दुआ करनी चाहिए पूरी इंसानियत के लिए, आलम इस्लाम के लिए, अपने मुल्क, अपनी रियासत, अपने लोगों के लिए। और दूसरी ये है कि मैं ये कहूँगा तमाम लोगों से कि इस वक्त जो है हमें एक ही चीज़ बचा सकती है, वो है एहतियात और एहतियाती तदाबीर, जो कि हमें बार बार बताई जा रही हैं। इसलिए लॉकडाउन जो हुआ है, लोग ताउन करें हुकूमत के साथ, इंतज़ामिया के साथ, घरों में रहें, महफूज रहें, अपने आप को बचाएं, अपनी फैमिली को बचाएं। क्योंकि अगर आप इससे मुतासर होते हैं तो फिर उसके बाद सबसे पहले आपके घर वाले, आपके अजीज़ कारब, आपके बच्चे, आपकी बहन, आपकी का भाई, आपकी वालदा, आपका वालिद मुतासर हो सकता है। तो इसलिए आप जब नहीं मुतासर होंगे तो अपने घर वालों को भी बचाएंगे। तो एहतियात करें, सेहत व सफाई का ख्याल रखें, नमाज पढ़ें और दुआ करें और एक दूसरे के साथ ताउन करें यहाँ कोई मुश्किल में है। और दूसरा ये है कि घरों में ज़ख़ीरा अंदोज़ी ना करें, बल्कि जो चीज़ आपको ज़रूरत है वो लें और बाकी चीज़ें बाज़ार में दूसरों के लिए छोड़ें। इसार और कुर्बानी का जो है वो जो है मुज़ाहिरा करें। तो यकीनन हम इस आजमाइश से निकलेंगे। 2005 के ज़लज़ले में जब हमने 80,000 अपने लोग खो दिए, उसके बाद 2010 का इतना बड़ा सैलाब गुजर गया, 2014 का सैलाब गुजर गया, फिर कई दफ़ा ज़लज़ले, मीरपुर का भी ज़लज़ला आया, उसके पहले ज़लज़ला आया जिसने बडग्राम में बहुत तबाही मचाई, फिर लाइन ऑफ कंट्रोल पे गोलाबारी में इतना कुछ हो रहा है। तो इन सब चीज़ों से अगर हम निकल आते हैं तो इंशाअल्लाह इससे भी हम निकलेंगे। लेकिन शर्त सिर्फ इतनी है कि हमें सब्र करना पड़ेगा और एहतियाती तदाबीर पर अमल करना पड़ेगा। हाँ, और उससे एक और बड़ी इम्पॉर्टेंट बात है कि अपने आसपास मोहल्ले में, अड़ोस पड़ोस में ज़रूर पता करें कि कोई दिहाड़ीदार या कोई गरीब गुरबा जो है वो भूखा ना सोए। और किसी की कोई ज़रूरत हो और आप पूरे कर सकते हो, आप साहिब इस्तेताअत हों तो ज़रूर कीजिएगा, इसका बड़ा अजर है। बिल्कुल, आपने जो बात की ज़बरदस्त की कि इस वक्त सबसे ज़्यादा अगर कोई मुतासर होगा ना, वो दिहाड़ीदार मजदूर मुतासर होगा। एग्जैक्टली। तो उसका बहुत ख्याल रखने की ज़रूरत है। आप अपने इर्द गिर्द, अपने मोहल्ले में, अपने एरिए में नज़र रखें ऐसे कौन लोग हैं, चुपके से उनके घर में राशन डाल दें ताकि उनके भी बच्चों को जो है भूख बर्दाश्त नहीं करनी पड़े, बल्कि वो अपना पेट भर सकें। अल्लाह की रज़ा के लिए करें, अल्लाह की ना कि सेल्फियाँ बनाने के लिए। मैं कल सोशल मीडिया पे देख रहा था, मुजफ्फराबाद में कुछ लोग खाना बांट रहे थे लोगों में, तो साथ कुछ सेल्फियाँ बनी हुई, कुछ तस्वीरें बन रही हैं। तो ऐसा कुछ भी ना करें, अल्लाह की रज़ा के लिए करें। सज़ा सवाब उस ऊपर वाली ज़ात ने देना है, वो हम सब की मुश्किलें आसान करे। बिल्कुल, आपकी बात ठीक है। नबूद नुमाइश जो है वो नहीं होनी चाहिए, अल्लाह की रज़ा के लिए होना चाहिए। कुछ इदारे जो है उनकी रिक्वायरमेंट भी होती है, लेकिन उसको भी हम एक अच्छे तरीके से पूरा कर सकते हैं। इज्जत नफ्स जो है ना, वायरल करना है मेरे ख्याल में ये अच्छी बात है। इज्जत नफ्स जो है जिसको आप दे रहे हैं उसकी मजरू ना हो, और उसके लिए भी बहुत सारे तरीकाकार हैं। आप उसको अच्छी तरह, आज मुझे किसी ने कहा जी कि मैं कुछ फैमिलीज को राशन देना चाहता हूँ किसी इदारे की तरफ से, हमें उसके लिए फोटो की रिक्वायरमेंट है, लेकिन उसके चेहरे बिल्कुल लोगों के ब्लर कर दें, कोई हमें एतराज़ नहीं है, ब्लर हो चेहरे। तो ये अच्छी चीज़ है कि आप चेहरे ब्लर कर दें, पहचान ना हो, रिक्वायरमेंट भी पूरी हो जाए। अगर चेहरे समेत भी बन जाए कोई इशू नहीं है, लेकिन आप उसको वायरल ना करें। जिस पर्पज के लिए आप बना रहे हैं उसी पर्पज के लिए। उसमें आपको एक और बात बताऊं कि अलमिया हमारे माशरे का कि कुछ अच्छी तंजीमें भी हैं जो काम करती हैं, लेकिन कुछ फेक तंजीमें हैं जो सिर्फ फ़ोटो सेशन करके फिर वो सोशल मीडिया पे बड़े बड़े दावे करती हैं कि हमने 10,000 ये चीज़ बांट दी, फलां इतने हज़ार बांट दी। हालांकि होता कुछ भी नहीं है, हमें खुद पता है प्रैक्टिकली कि ना उनकी कैपेसिटी होती है ना कोई। सिर्फ ये है कि ये अपना दाना पानी चलाने के लिए उसको कार्ड किस्म की ऑर्गेनाइजेशन बनी होती है। ये बड़ा अलमिया है। इससे क्या नुकसान हो रहा है? इससे नुकसान ये हो रहा है कि जो देने वाला है ना, जो डोनर है, इंडिविजुअल है या अदारा है, वो मुतनफ़र हो जाता है जब ये काम प्रॉपर नहीं हो रहा था। तो इस शोबे को जो है
नेकनामी इसी सूरत में हो सकती है कि आप अपने बेहतरीन तरीके से दयानतदारी से अमानत जो है अमानतदार समझ तक कर उसको अदा पहुँचाएं, करें। अमानत समझ के अकदार तक पहुँचा दें। थैंक यू वेरी मच। सामीन, इसी के साथ ही हमारे आज के इस प्रोग्राम वीओ के न्यूज़ नेटवर्क का वीओ के इंफॉर्मेशन डेस्क का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है। आप मुजफ्फराबाद स्टूडियो से ये प्रोग्राम सुन रहे थे। इस वक्त मुजफ्फराबाद, रावलाकोट और बाग में बैक वक्त 3 स्टेशन से, वॉइस ऑफ कश्मीर के 3 स्टेशन से ये प्रोग्राम सुना जा रहा था। और आपके एरिया में अगर कोई मसला है तो आप ज़रूर हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कीजिएगा 0582244105। और इसी तरह बाग और रावलाकोट के नंबर भी हमारे स्टेशन से अनाउंस किए जाते हैं। और गाय बगाए हमारी कोशिश है कि हम हर तरह की सूरत हाल से आपको आगाह रखें। हमारा जो हक बनता है, हमारा जो हिस्सा है, हमारी पूरी कोशिश है कि हम उसको पूरा करें। इसी के साथ हमें इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। कल इंशाअल्लाह इसी प्रोग्राम में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह अल्लाह निगहबान। हाफ़िज़।